A very good morning to all of you. कैसे हैं आप सब लोग? As we are discussing about the gene regulation operant concept in our last class, but due to some technical issues, we are not able to continue the class. So now we are going to start the class once again and dealing with same topic, that is the gene regulation and operant concept. So now start the class. A gene regulation. As we all know, within a cell there are several levels. Suppose this is your DNA. This is your DNA which undergo transcription and give rise to a product that is known as a primary transcript. And primary transcript undergo the RNA processing, a process known as RNA processing, and give rise to a mRNA. This mRNA undergo translation and give rise to a product that is known as, say, this is your protein, and the protein finally undergo post translation modification. Post translation modification, so finally give a protein that is a functional protein. वो क्या होगा? आपका functional protein होगा. So within a cell, there are several levels where the regulation of a gene can be seen. Suppose this is your first level, second, third, and fourth. There are four different levels where can we are able to see the regulation of gene can be seen. So there are several questions that comes in our mind. Who regulate these functions? How does it regulate? कोई प्रोटीन है, सपोज दिस इज ए प्रोटीन ए, whenever it will be going to form within a cell, क्या ये प्रोटीन ए है एक सेल के अंदर, it always be express, और whenever it need then it will be express. और अगर ये एक्सप्रेस हो रहा है तो कौन इसको, who going to decide this कि इसको एक्सप्रेस होना है? अभी क्या सेल ऑल द प्रोटीन्स को एक टाइम पर बनाती रहेगी? देर आर सेवरल टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट कम्स इन आवर माइंड. सो this is your suppose a cell, or this is your protein A, and this is a gene. This is a gene for protein A. Now whenever this cell need of a protein A, it turn on the expression of gene A. भाई जैसे आपको प्रोटीन ए चाहिए तो सेल क्या करना है? सेल गोइंग टू टर्न ऑन द रेगुलेशन, और वी कैन से एक्सप्रेशन ऑफ दिस जीन that express करेगा, that express the protein A. If there is no longer need, case second, when there is no longer need in the cell, then क्या होगा आपका? this is your gene A, so there is no longer need of protein A. Now cell going to be turn off this regulation and there is no protein form. सो अब ये जैसे कि वेन एवर नीड है, कब बॉडी को नीड है कब नहीं है, कौन डिसाइड करेगा? कौन इन चीजों को, हु गोइंग टू बी रेगुलेट दिस? सो टू एक्सप्लेन दीज, there were two scientists named Jacob and Monod in 1962. In 1961 proposed a concept that is known as operon. अभी operon is not stand for any scientist name. OPERON, operon, that is known as operon. और operon क्या था? operon explain, operon is a basic concept, we can say is a basic concept about how regulation occur at the level of transcription.
सो ओपेरॉन जैकब एंड मोनी ने प्रपोज किया टू एक्सप्लेन करने के लिए कि हाउ डज द रेगुलेशन ऑफ जीन्स अकर एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. सो नाउ वी कैन define the operon as a functional unit of a DNA is a functional unit of DNA that is consisting of a group of genes. It is a functional unit of gene that is consisting of group of gene which are under the control of a single promoter. क्या कहना चाह रहे हैं? Suppose this is your gene A, this is gene B, gene C or gene D. This is a single promoter. So all these genes are under the control of a single promoter. So we can say in operon we talk about a polycistronic mRNA. Polycistronic mRNA. Because there are different type of protein forming genes होंगे that are under the control of a single promoter. Or we can say all the gene within a operon are expressed as a single unit. सभी के सभी जीन कैसे एक्सप्रेस होंगे? एज ए सिंगल यूनिट की तरह ही एक्सप्लेन होंगे. So now we talk about the gene. A gene, as we all know, part of the DNA. We can define gene as a part of DNA that code for mRNA. So there are two type of genes that are found within a cell. There are two type of genes that are found within a cell. The first one is gene that will found always on. So this type of cell found to be cell within always on, or we call them as a housekeeping gene. Housekeeping genes. Such genes are required for maintenance of basic cellular functions. These are genes required for maintain basic cellular functions under the normal condition. We cannot regulate their function if always on. They found always on, and because their expression of these product because expression of their product because of their expression of their product is continuous, that's why we call them as constitutive gene. भी इन्हीं जीन को हम क्या बोल के जाएंगे? कॉन्स्टिट्यूटिव जीन भी बोल देंगे. जीन एक once revise it once again. देखो, one type of gene that found always on, so we call them as a housekeeping genes. इनको हम हाउसकीपिंग जीन भी बोल सकते हैं because they are required for maintenance of basic cellular functions under normal conditions. Because their expression of their product is continuous, because जो expression रहेगा continuous होता है, that's why we call them as a constitutive gene. एक्सप्रेशन कंटिन्यूस जीन का तो हम इनको कॉन्स्टिट्यूटिव जीन भी कह देंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल देर आर सर्टेन gene products such as the tRNA, mRNA, sorry not this is rRNA, tRNA, rRNA. इसके अलावा हम बात कर सकते हैं RNA polymerase and RNA polymerase subunits. There are some example of housekeeping genes. The second type of gene that are found within a cell, they are called known as regulatory genes. So we call them as a regulatory gene. Call them regulatory gene. They as either found normally on, or we can say normally
off. Some type of genes normally found on or some type of normally found off. So we regulate by their function. Those gene which are initially found on, we can off them, और जो जीन आपके नॉर्मली ऑफ रहेंगे उनको हम क्या करेंगे, वी गोइंग टू ऑन देम. So we can regulate their functions. So now you can write the definition of a regulatory gene. So write down a regulatory gene which regulate the expression of one or more structural genes, as structural one or more structural gene by controlling the production of a protein, controlling the production of a protein called a repressor, or we can say as activators. So we can again define this is a gene which regulate the expression of one or more structural gene by controlling the production of one or more protein. एंड द प्रोटीन कौन कौन से प्रोटीन के प्रोडक्शन को कंट्रोल, जो प्रोडक्ट को फॉर्म करते हुए कंट्रोल करेगा, दैट इज मे बी एनी रिप्रेसर प्रोटीन और एनी एक्टिवेटर. सो रेगुलेटरी जीन कैसे रेगुलेट कर रहे हैं, एक एक्सप्रेशन को करेंगे, स्ट्रक्चरल जीन के एक्सप्रेशन को चेंज करेंगे कैसे, बाय प्रोडक्शन ऑफ ए प्रोटीन दैट इज नोन एज एक्टिवेटर और ए रिप्रेसर प्रोटीन. सो नाउ दिस इज क्लियर. सो नाउ टॉक अबाउट ए रेगुलेटरी जीन. सो रेगुलेटरी जीन के बारे में अगर हम बात करें, there is two condition. Now talk about initially first condition. बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंप्लीट अपेरन का. सो इनिशियली हमने बोला कि रेगुलेटरी जीन इनिशियली दैट वाज इनिशियली फाउंड टू बी ऑन. भी जो जीन आपके इनिशियली कंडीशन में क्या मिल रहे थे, नॉर्मली क्या थे आपके, जिनको हम क्या करते, नॉर्मली आपके ऐसे जीन जो नॉर्मली क्या रहेंगे, ऑन थे. कंडीशन ए में हमने बोला जो जीन आपके क्या है, नॉर्मली ऑन है. और कंडीशन 2 क्या थी, ऐसे जीन दैट नॉर्मली क्या है आपके ऑफ. ठीक है. अभी अगर आपको नॉर्मली ऑन है तो हम कैसे रेगुलेट करेंगे, हाउ डज वी रेगुलेट दिस फंक्शन, सेल कैसे रेगुलेट करेगी. तो इस फंक्शन जो इनिशियल कंडीशन में क्या थे आपके ऑन थे, सेल नाउ गोइंग टू बी ऑफ दिस फंक्शन. अगर कोई जीन नॉर्मली आपके ऑफ है तो सेल क्या करेगी, सेल विल बी गोइंग टू स्विच ऑन देयर फंक्शंस. सो वी कैन रेगुलेट. एंड रेगुलेट करने के लिए कौन से प्रोटीन थे, या तो आपका रेगुलेटरी प्रोटीन बोल देंगे. रेगुलेटरी प्रोटीन तो कौन कौन से हो गए, लेट मी रेज वन. या तो हम जो बोल रहे हैं रेगुलेटरी प्रोटीन है, कौन से रेगुलेटरी प्रोटीन, या तो एक्टिवेटर होगा या आपका रिप्रेसर प्रोटीन होगा. तो मैंने बोला चलो एक्टिवेटर को, ये हो गया एक्टिवेटर हो गया. सेकेंडली क्या होगा आपका, रिप्रेसर प्रोटीन. ओनली रोल ऑफ टू प्रोटीन, एक्टिवेटर एंड रिप्रेसर. So activator को we denote by the A, और repressor by, activator we denote by the positive and repressor by negative. ये हमेशा याद रखना, activator को we always denote by plus and repressor we always denote by negative, क्योंकि because repressor repress the system, negative feedback कर रहे हैं, negatively regulate कर रहे हैं, तो we call that is it is negative, और activator always positively regulate, so we can denote by the plus. ओके इतना क्लियर है. सो अभी नॉर्मली व्हेन एवर योर जीन फाउंड टू बी ऑन, नॉर्मली क्या था आपका, इनिशियली जब ऑन था तो उस टाइम एक्टिवेटर क्या होगा, भाई नॉर्मली ऑन था, एक्टिवेटर का काम ही ऑन करना, तो एक्टिवेटर क्या था आपका, इट वाज एक्टिव. एंड रिप्रेसर क्या था, वाज इनएक्टिव. रिप्रेसर क्या था, इनएक्टिव था इनिशियली बात.
जब ऑन था जीन तो एक्टिवेटर क्या था, एक्टिव था, रिप्रेसर इनएक्टिव था। तो सब हमें क्या करना है अभी, एक्टिवेटर का क्या करना है, एक्टिवेटर को तो हमें इनएक्टिव कर देंगे, इनएक्टिव कर देंगे एक्टिवेटर प्रोटीन जिसको ए से डिनोट कर रहे हैं। और जो आपका रिप्रेसर प्रोटीन है, रिप्रेसर है जिसको आर से डिनोट कर, इसको हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू एक्टिव दिस। ठीक है, इनिशियली बोथ activator was active and repressor was inactive, so that time the gene was on, but whenever we need to off it, so activator को तो हमें inactive करना पड़ेगा, we need to inactive this, और repressor protein को हमें क्या करना पड़ेगा, active करना पड़ेगा। so initially a system जिसमें आपका on था, now we are going to off this, so we can say that we are going to repress this system। कह सकते हैं कि हम इसको रिप्रेस कर रहे हैं। तो जिस सिस्टम में हम रिप्रेस करके जा रहे हैं, सिस्टम को पहले ऑन था, रिप्रेस कर दिया, सप्रेस कर दिया, तो हम इसको रिप्रेसिबल सिस्टम कह देंगे, रिप्रेसिबल सिस्टम कह देंगे, रिप्रेसिबल सिस्टम कह देंगे। तो इसको हम आर से डिनोट कर देंगे, रिप्रेसिबल सिस्टम को हम आर से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे सिस्टम जिसका हमने फंक्शन को हमने क्या किया, ऑफ कर दिया, तो ऐसे सिस्टम को हमने रिप्रेसिबल सिस्टम का, initially it was on, now we are going to off this, so this is kind of system we are called repressible system। for repressible system कैसे होगा, इसके लिए हम को रिप्रेसर, वी नीड ए molecule that is known as को रिप्रेसर। initially the repressor molecule was inactive, जब आपका रिप्रेसर इनएक्टिव था। सपोज दिस इज योर, इसी को और थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। सपोज दिस इज योर ए रिप्रेसर मॉलिक्यूल, ये क्या आपका रिप्रेसर मॉलिक्यूल था। इनिशियली इट वाज इन देयर इट इन एक्टिव फॉर्म। सो फॉर एक्टिव करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक स्मॉल मॉलिक्यूल चाहिए। तो स्मॉल मॉलिक्यूल क्या आएगा, सपोज दिस इज योर स्मॉल मॉलिक्यूल, वी नीड, once this small molecule comes in our system, so repressor molecule bind with this small molecule and now become active। अब दिस जो स्मॉल सिस्टम आया था तो इसको हम क्या बोल देंगे, वी कॉल्ड इट को रिप्रेसर। क्या बोलेंगे इसको हम, को रिप्रेसर। सो को रिप्रेसर को भी हम डिफाइन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, राइट डाउन करो भाई, डिफाइन करो। को रिप्रेसर की डेफिनेशन को लिख सकते हैं, वी कैन राइट को रिप्रेसर की डेफिनेशन क्या होगी, ए स्मॉल मॉलिक्यूल दैट बाइंड विद, दैट बाइंड विद repressor, that bind with repressor protein and make it capable of, and make it capable of binding, so make capable binding or make it active, or we can say make it active, such type of molecule known as co-repressor। so ऐसे molecule को हम क्या बोलेंगे, co-repressor। ये आगे समझ में आ जाएगा थोड़ा और आगे जब देखें। now talk about second thing, whenever your gene was initially क्या था, whenever gene was normally off and we have to on this system, so there is two type of, again two type of protein। the first one is a your repressor protein, R से इंडिकेट कर देंगे। सेकंड वन, सो रिप्रेसर है तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस से इंडिकेट करेंगे, माइनस से। लास्ट टाइम क्या बताया था हमने, माइनस से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, और सेकंड आपको प्रोटीन कौन सा होगा, एक्टिवेटर, जिसको हम प्लस से इंडिकेट कर दें, पॉजिटिव। ये आपका हो गया रिप्रेसर प्रोटीन और ये हो गया आपका एक्टिवेटर प्रोटीन। ठीक है, दो प्रोटीन, देयर आर टू टाइप ऑफ प्रोटीन्स। सो इनिशियली वाज ऑफ, सो नाउ वी हैव टू ऑन दिस सिस्टम। सो एनी सिस्टम दैट वाज इनिशियली ऑफ, और ऑन करना में तो हमें रिप्रेस करने सिस्टम के ऑन करना है, वी हैव टू इंड्यूस दिस सिस्टम। हमें ऑन करना, इंड्यूस करना, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोल देंगे, वी कॉल दिस इंड्यूसिबल, इंड्यूसिबल। इसको हम आई से डिनोट कर देंगे। जब इनिशियली आपका जब ऑन था और हमें ऑफ किया, ऑन से ऑफ किया, रिप्रेस किया, रिप्रेसिबल बोल दिया। जब ऑफ था, ऑफ से हमने क्या किया, ऑन सिस्टम किया है, ऑफ से जब हमने ऑन किया, ऐसे सिस्टम को इंड्यूस कह देंगे, इंड्यूस किया हमने, और सच टाइप ऑफ सिस्टम को हम इंड्यूसिबल सिस्टम कह देंगे। सो इंडक्शन क्या हो गया, इंडक्शन को अगर आप डिफाइन करना चाहते हो क्या होगा, इंडक्शन के बारे में लिखो, द प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑन एक्सप्रेशन ऑफ ए जीन। चलो राइट डाउन कर देता हूं मैं इंडक्शन के लिए यहाँ पे, द प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑन expression
of a gene, expression of a gene in response to a substance, in response to a substance in environment इज नोन एज इंडक्शन। तो इंडक्शन क्या हो गया, प्रोसेस जिसमें हम जीन को ऑन करेंगे किसके रेस्पॉन्स में, एनी सब्सटेंस के, जब कोई सब्सटेंस आपके एनवायरनमेंट में आए तो हम उस सिस्टम को क्या करते हैं, ऑन करें, तो ऐसे सिस्टम को वी कॉल्ड एज इंडक्शन। सो जीन हुज रेगुलेशन और से एक्सप्रेशन इज रेगुलेट इन दिस मैनर वी कॉल देम इंड्यूसिबल जीन्स। आगे समझ में, और वो जीन जिनका एक्सप्रेशन सच मैनर में रेगुलेट होगा उन जीन को वी कॉल देम एज इंड्यूसिबल जीन्स। सो अब बात करते हैं जो आपका रिप्रेसर प्रोटीन था इनिशियली कैसा था। जी आपका जीन ऑन है तो रिप्रेसर क्या था इनिशियली, इट वाज एक्टिव। भाई जीन जब आपका इनिशियली ऑफ है तो रिप्रेसर कैसा होगा, रिप्रेसर आपका क्या होगा, एक्टिव मॉलिक्यूल रहेगा। और जो आपका पॉजिटिव की बात करें, एक्टिवेटर क्या था, जब जीन ऑफ था तो एक्टिवेटर ऑन ऑफ रहा होगा, हम कह सकते इनएक्टिव है। सो जब जीन को ऑन करना है तो व्हाट वी नीड, वी हैव टू इनएक्टिवेट the repressor molecule, inactivate the repressor. Secondly, activate the activator, activate the activator। तो जहां पर आपका जीन इनिशियली ऑफ रहेगा तो हम उस सिस्टम में क्या बोलेंगे आपको, इंड्यूसिबल। और इंड्यूसिबल को हम क्या कहेंगे, आई से डिनोट करेंगे। वेन एवर वी टॉक अबाउट द आई, समझ हम इंड्यूशियल की बात करें, आर की बात करें रिप्रेसिबल सिस्टम। नेगेटिव के बारे में अगर हम बात करेंगे तो नेगेटिव का मतलब कि जीन आपका कौन से प्रोटीन का रोल आपका यहाँ पर रिप्रेसर प्रोटीन का है, और पॉजिटिव का रोल आ रहा है तो इसका मतलब आपका एक्टिवेटर प्रोटीन का रोल। अभी तक ये चार चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। इंड्यूसिबल का अगर कोई पूछता है इन इंड्यूसिबल सिस्टम मींस इंड्यूसिबल इनिशियली वह सिस्टम कैसा था आपका, ऑफ था, नाउ वी हैव टू ऑन दिस, वी हैव टू इंड्यूस दिस सिस्टम। इफ रिप्रेसिबल इट मीन द सिस्टम वाज इनिशियली ऑन, नाउ वी हैव टू रिप्रेस दिस, सो दिस सिस्टम इज ए रिप्रेसिबल सिस्टम। क्लियर है, इतना कर लोगे। चलो आगे चलते हैं। लेट मी रेज वन एंड लेट देखते क्वेश्चन क्या है, एक बार रेज कर लेते इसको, क्वेश्चन को देख लेते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन, दिस इज ए क्वेश्चन इन नेगेटिव रिप्रेसिबल ओपेरो। अभी क्या आपके पास इंफॉर्मेशन आई है, नेगेटिव रिप्रेसिबल, ऐसे ही सोल्व करना है आपको, यू हैव टू सोल्व इन सच मैनर। नेगेटिव है, नेगेटिव मीन्स देर इज ए रोल ऑफ, लास्ट लिए हमने क्या होता है नेगेटिव का मीन्स देर इज ए रोल ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन। क्लियर है, रिप्रेसर का रोल आ गया यहाँ पर, ठीक है। सेकेंडली रिप्रेसिबल, जब वेन एवर समवन आस्क यू अबाउट रिप्रेसिबल तो रिप्रेस किसको करेंगे, एनी सिस्टम दैट वाज इनिशियली क्या था, ऑन था, नाउ वी हैव टू रिप्रेस दिस, सो वी हैव टू ऑफ दिस। इस सिस्टम को हमने क्या लिया था, रिप्रेसिबल सिस्टम। नेगेटिवली था तो रोल किसका, कौन से प्रोटीन का हो गया, रिप्रेसर प्रोटीन का। अभी आगे क्वेश्चन देखो, तो रेगुलेटरी प्रोटीन क्या हो गया आपका, रिप्रेसर हो गया। इसमें किस फॉर्म में सिंथेसाइज हुआ है इस सिस्टम में, तो इनिशियली किस फॉर्म में सिंथेसाइज था, जब आपका सिस्टम ऑन रहेगा तो रिप्रेसर क्या बताया था हमने, ऑन है तो रिप्रेसर कैसा था, इनएक्टिव रहा होगा। तो इन ए नेगेटिव रिप्रेसिबल सिस्टम, यानी कि ऑन से ऑफ किया हमने, रिप्रेस किया हमने, ऑफ करना है, और किसके फंक्शन को चेंज करना हमें, नेगेटिव बोले तो रिप्रेसर प्रोटीन का। तो इनिशियली जो रिप्रेसर प्रोटीन किस फॉर्म में सिंथेसाइज होता है, इनएक्टिव फॉर्म में हुआ था। तो आंसर क्या होगा आपका, एज एक्टिवेटर प्रोटीन, नो एक्टिवेटर तो हटा दो। now as an active repressor, if it was active repressor then system was off, but system was on tha initially, so it is a active repressor, sorry it was a inactive repressor। तो आपका जो आंसर हो जाएगा इनएक्टिव रिप्रेसर हो जाएगा। क्लियर है इतना, भाई इतना ही तो हमने पढ़ा है। नेगेटिव रिप्रेसिबल, भाई सिस्टम क्या था, ऑन है, ऑफ करना में, इट्स मीन दिस इज ए रिप्रेसिबल सिस्टम। So negative means role of repressor. Repressor initially was off था, now we have to active this. So initially किस फॉर्म में सिंथेसाइज था, ऑफ फॉर्म में, रिप्रेसर ऑफ फॉर्म में था, यानी कि ऑफ फॉर्म बोले तो इनएक्टिव फॉर्म। क्लियर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं, जीन विद इन ए ओपेरॉन। नाउ टॉक अबाउट ए जीन विद इन ए operon system. There are two type of genes found in a operon. One is, if we talk about gene in operon, तो आपके दो टाइप के जीन देखने को मिलेंगे। द फर्स्ट वन इज, वी कैन कॉल देम ए कंट्रोलर जीन, कंट्रोलर जीन,
और सेकंड टाइप ऑफ जीन कौन से होंगे आपके? सेकंड टाइप जीन होंगे आपके स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन। अभी कंट्रोलर जीन क्या होंगे उनका देख लेते हैं कि व्हाट इज आर द कंट्रोलर जीन और व्हाट आर द स्ट्रक्चरल जीन्स। ठीक है, तो कंट्रोलर जीन क्या कर आपके कितने टाइप्स के होंगे? सपोज करो देयर आर 3 टाइप ऑफ कंट्रोलर जीन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। तो एक आपका क्या हो जाएगा? रेगुलेटरी जीन। रेगुलेटरी जीन भी क्या आपके कंट्रोलर जीन में आएंगे। सेकेंड वन आर योर प्रमोटर। प्रमोटर थर्ड टाइप का जीन कौन सा होगा आपका? थर्ड वन इज योर ऑपरेटर। There are 3 type of genes that are found in the controller genes. So we regulatory gene को we indicate by this I, and for promoter we indicate them by P, and operator by O. And the structural gene, there are different type of structural genes that S1 say S1, S2 or S3. So they directly code for a protein. They directly code for a protein. Controller gene क्या करेंगे? They control the expression of the structural genes, or structural genes directly code for a protein or structural proteins. Now it is clear. So if we talk about the detailed structure of a operon, in a operon we talk about if we operon there is क्या मिलेगा आपको? स्ट्रक्चरल और कंट्रोलर जीन मिलेंगे। चलो देख लेते हैं एक बार कौन कौन से जीन होंगे। सपोज दिस इज योर प्रमोटर। अभी रेगुलेटरी जीन है तो रेगुलेटरी जीन का प्रमोटर कहते हैं। दिस इज योर से रिप्रेसर प्रोटीन हो गया, या रेगुलेटरी प्रोटीन कहते हैं यहाँ पे, रेगुलेटरी प्रोटीन हो गया यहाँ पे। इट इज योर प्रमोटर ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स, ऑपरेटर ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स, और लास्ट में आपके स्ट्रक्चरल जीन्स S1 S2। दिस इज योर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ओपेरॉन। सो पी प्रमोटर, रेगुलेटरी प्रोटीन और प्रमोटर और अगेन ऑपरेटर, दीज आर कम्स अंडर द controller genes. Controller genes, they all involved in controlling the expression of the structural genes, or it is a structural genes. It is a detailed structure of a structural gene. तो दिस इज योर रेगुलेटरी जीन। अभी रेगुलेटरी जीन में आपके कौन कौन से हो गए? प्रमोटर ऑफ रेगुलेटरी जीन, दिस इज योर रेगुलेटरी जीन जिसको वी कैन डिनोट बाई आई, एंड दिस इज योर कैप साइट जहाँ पर आप एक्टिवेटर बाइंड करेगा। कैप साइट क्या होगी? कैप साइट को हम कह सकते हैं 26 न्यूक्लियोटाइड की एनी सीक्वेंस है जहाँ पर वेयर द कैप प्रोटीन गोइंग टू बाइंड दिस कैप प्रोटीन। और कैप प्रोटीन क्या होगा? आपका एक्टिवेटर प्रोटीन का ही टाइप होता है जो यहाँ पर बाइंड करेगा कैप साइट पर। कौन बाइंड करेगा? कैप प्रोटीन्स। वो अभी नेक्स्ट जब हम पॉजिटिव रेगुलेशन देखेंगे लैकोपोरिन की उसमें देख लेंगे कि कैसे बाइंड करता है। ठीक है, अभी इतना याद करना इस टाइम पे कि कैप साइट है ये, कैप साइट पर आपका कैप प्रोटीन बाइंड करेगा। और क्या फंक्शन रहेगा? It will increase or we can say enhance the efficiency of RNA polymerase। अभी प्रमोटर है, इस प्रमोटर पर इसको हम P से डिनोट कर देंगे। यहाँ पर कौन बाइंड करेगा? यहाँ पर आपका एक प्रोटीन आएगा, we call this protein RNA polymerase। यहाँ पर कौन बाइंड करेगा? RNA बाइंड बाय द RNA polymerase। ठीक है, ऑपरेटर इसको से डिनोट कर देंगे। अब ऑपरेटर पर कौन बाइंड करेगा? जो आपका रेगुलेटरी प्रोटीन आएगा। सपोज इसका रिप्रेसर प्रोटीन आया। अब ये रिप्रेसर प्रोटीन, इसने रेगुलेटरी प्रोटीन क्या था आपको मैंने बोला आई था, और आई में रिप्रेसर था, रिप्रेसर प्रोटीन बना। और नाउ दिस रिप्रेसर प्रोटीन गोइंग टू बाइंड विद ऑपरेटर सीक्वेंस। तो यहाँ पर कौन बाइंड करेगा? ऑपरेटर पर आपका रिप्रेसर। ये दीज आर योर ए जीन, बी जीन, सी और डी आर ऑल आर स्ट्रक्चरल जीन्स। क्लियर है? सो अंडरगो ट्रांसक्रिप्शन एंड फाइनली ट्रांसलेशन एंड गिव योर प्रोटीन प्रोडक्ट। सो इतना क्लियर है। प्रमोटर की कौन सी साइट है जहाँ पर आपका आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, गोइंग टू बाइंड, एंड ऑपरेटर पर आपका जो भी रिप्रेसर प्रोटीन होगा वो बाइंड करेगा। कैप साइट पर आपका एक्टिवेटर प्रोटीन बाइंड करेगा। ना इतना क्लियर है। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब हाउ डज ओपेरॉन नॉर्मली वर्क? तो नॉर्मली वर्क कैसे करता है वो देख लेते हैं एक बार। हमारा ओपेरॉन सिस्टम है तो ये वर्क कैसे करता है। देखो क्या होता है नॉर्मली आपके ओपेरॉन में। अगर हम ओपेरॉन सिस्टम की बात करें कि कैसे नॉर्मली फंक्शन कर, देखो दिस इज योर अगेन मेक सेम डायग्राम। दिस इज योर प्रमोटर ऑफ रेगुलेटरी जीन, दिस इज रेगुलेटरी जीन, और ये आपका हो गया प्रमोटर अगेन स्ट्रक्चरल जीन, ऑपरेटर, और ये आपका S1 S2 और S3 स्ट्रक्चरल जीन्स हो गए। ठीक है, अभी क्या होता है नॉर्मली आपका
कोई भी आरएनए पॉलीमरेज आया, व्हेन आरएनए विल कम एंड बाइंड टू द प्रमोटर, एंड इससे क्या होगा, आपका जो रेगुलेटरी जीन है ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसलेशन होकर प्रोटीन बना दिया। अब ये प्रोटीन फंक्शनल है नॉन फंक्शनल वो अलग बात रहेगी, ठीक है, एक्टिव है इनएक्टिव है। और ये अगर आपका एक्टिव है सपोज करो तो ये कहाँ पर बाइंड कर गया, ऑपरेटर पर बाइंड कर गया, तो अभी इसने सिस्टम को क्या कर दिया, ऑफ कर रखा है। अगर ये प्रोटीन इफ दिस प्रोटीन वाज, अगर आपका ये प्रोटीन कैसा है, ये वाला जो प्रोटीन हमने बनाया ये पहले तो एक्टिव था तो बाइंड कर गया। अगर हम सेकंड केस की बात करें, वैन एवर करिए ट्रांसफर करिए इनएक्टिव बना, तो अब ये बाइंड नहीं करेगा। अगर ये बाइंड कर रहा है तो नो ट्रांसक्रिप्शन, इफ इट नॉट बाइंड, देखो इनिशियली कंडीशन में क्या था, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन और एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन बना, और ये क्या था आपका फंक्शनल और एक्टिव था। जब ये एक्टिव था तो इट विल गोइंग टू बाइंड विद ऑपरेटर सीक्वेंस एंड नो फर्दर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ S1 S2 S3 जीन्स, सो नो ट्रांसक्रिप्शन। और व्हेन द आर प्रोटीन जो आपका रेगुलेटरी प्रोटीन था किस फॉर्म में था, इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा, देन इट विल नॉट एबल टू बाइंड विद दिस सीक्वेंस। सो यहाँ पर बाइंड नहीं करेगा तो यहाँ पर जो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ आकर बाइंड किया था प्रमोटर के साथ वो उसको ट्रांसक्राइब कर जाएगा, और नव क्या होगा, आपका ट्रांसक्रिप्शन देखने को मिलेगी। इस टाइप से आपका रेगुलेशन देखने को मिलता है। नॉर्मली ऐसे ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करेगा, ठीक है। चलो अब नेगेटिव और पॉजिटिव कंट्रोल की बात कर लेते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव कंट्रोल, और वी कैन से इंड्यूसिबल और रिप्रेसिबल। सो जैसे हमने एज वी टॉक अबाउट इन लास्ट लेक्चर, नेगेटिव मीन्स, जब हमने नेगेटिव की बात की, इट मीन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ प्रोटीन नेम रिप्रेसर। और व्हेन वी टॉक अबाउट अ पॉजिटिव, अभी कोई पॉजिटिव प्रोटीन है, इट्स मीन वी आर टॉकिंग अबाउट एक्टिवेटर। क्लियर है इतना। सेकेंडली इंड्यूसिबल की बात कर रहे हैं, anything that is inducible, it's mean it was initially off, now we have to induce this system, so we can say this is a inducible system. Or repressible means initially anything on, now we are going to off this, we are going to repress this, such type of system we call repressible system. Clear itna. If there was a role of a negative protein in this, अगर इसमें आपका नेगेटिव प्रोटीन का रोल है तो हम क्या बोलेंगे इसको, नेगेटिवली इंड्यूसिबल। इफ रोल ऑफ पॉजिटिव देन वी कॉल पॉजिटिव इंड्यूसिबल। इफ देर इज अ रोल ऑफ a negative protein we can negative repressible. If there was a role of positive protein then we call positive repressible system. क्लियर है। अगर उसमें आपका रोल नेगेटिव प्रोटीन का रहेगा, जब यहाँ पर आपका ऑफ था, ठीक है, सिस्टम में जो इंड्यूसिबल सिस्टम में अगर रोल ऑफ नेगेटिव प्रोटीन, सो वी कैन कॉल इट ए नेगेटिव इंड्यूसिबल, इफ पॉजिटिव पॉजिटिव इंड्यूसिबल। सिमिलरली इन रिप्रेसिबल सिस्टम रोल इफ नेगेटिव प्रोटीन देन वी कॉल नेगेटिव रिप्रेसिबल, इफ हैव पॉजिटिव प्रोटीन रोल देन वी कॉल इट एज ए पॉजिटिव रिप्रेसिबल सिस्टम। सो फर्स्ट केस की बात करेंगे अब, नेगेटिव इंड्यूसिबल सिस्टम। चलो नेगेटिव से क्या समझ में आपका, नेगेटिव मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्रेसर प्रोटीन, रिप्रेसर प्रोटीन, repressor protein. और inducible means anything that was initially off and now we have to induce this. ये इंफॉर्मेशन आपके पास है। सपोज दिस इज योर सेल, क्या होगा इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन में क्या होगा, तो यहाँ इंड्यूस करने में तो हमें इंड्यूसर चाहिए, इंड्यूसर चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, इंड्यूसर चाहिए, इंड्यूस करना है, स्मॉल मॉलिक्यूल चाहिए जो उसके साथ बाइंड करेगा और इसको इनएक्टिव करेगा, देखते हैं। तो व्हेन एवर केस फर्स्ट, जब आपका नो इंड्यूसर, कोई इंड्यूसर नहीं था, तो इनिशियली क्या था, इनिशियली क्या कंडीशन थी, दिस इज योर प्रमोटर, रोल किसका आपका, नेगेटिव रिप्रेसर का, प्रमोटर ऑफ रेगुलेटरी प्रोटीन, दिस इज योर रेगुलेटरी प्रोटीन, दिस इज ए प्रमोटर ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, ऑपरेटर एंड से जीन एस, स्ट्रक्चरल जीन S2 और S1। क्लियर है इतना। इनिशियली जब आपका कोई इंड्यूसर नहीं था तो क्या कंडीशन, देखो आपका आरएनए पॉलीमरेज आया, बाइंड किया, अब जो रेगुलेटरी प्रोटीन था ट्रांसक्रिप्शन जाएगा, अंडरगो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन एंड गिव राइज टू ए प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड से प्रोटीन। ये आप इन्होंने क्या बनाया, आपका प्रोटीन बना दिया। अभी ये प्रोटीन क्या रहेगा, इनिशियली जब सिस्टम ऑफ था तो ये एक्टिव प्रोटीन बना इसने, अभी एक्टिव प्रोटीन है
इट विल गोइंग टू बाइंड दिस ऑपरेटर। इसने क्या किया, ऑपरेटर के साथ बाइंड कर दिया। सो वेन एवर आरएनए पॉलीमरेज कम्स, जब आपको कोई आरएनए पॉलीमरेज आ रही है यहाँ पे बाइंड किया तो आगे इसको जगह नहीं मिलेगी, नॉट एबल टू ट्रांसक्राइब द फर्दर, सो इनिशियली द जीन वाज ऑफ। इस कंडीशन में आपका जीन क्या था, ऑफ रहेगा। आई इसमें जब इंड्यूशन नहीं था तो क्या था, इसने बाइंड किया, रेगुलेटरी पॉलीमरेज ने ट्रांसक्राइब किया रेगुलेटरी जीन ने, और एक्टिव जो आपका रिप्रेसर प्रोटीन क्या था, एक्टिव था, और ये अपने ऑपरेटर सीक्वेंस में बाइंड कर रहा था, जिसकी वजह से आगे फर्दर ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती और जीन आपका क्या था, जीन इसमें ऑफ था। वेन एवर जिस दिन इसकी ज़िंदगी में कौन आया, इंड्यूसर ने एंट्री मारी, उन्हें मारी एंट्री, जैसे सॉन्ग है ना वैसे ही, तो इंड्यूसर ने यहाँ पर क्या किया, एंट्री मार ली। अभी जैसे ही इंड्यूसर ने इसकी ज़िंदगी में आ जाएंगे तो क्या होगा, इसकी ज़िंदगी खुशी हो जाएगी। वो सॉन्ग कौन सा था, एंट्री वाला याद कर रहे हैं, उससे भी याद हो जाएगा आप लोगों को। तो चलो फिर से एक बार सीक्वेंस ड्रॉ कर लेते हैं आप लोगों के लिए। ये क्या था आपका, सभी के लिए इजी है, रेगुलेटरी प्रोटीन का प्रमोटर था, रेगुलेटरी प्रोटीन था, प्रमोटर था, स्ट्रक्चर जीन का ऑपरेटर था, और ये आपका S1 और S2 जीन थे। ठीक है, अभी इसकी ज़िंदगी में कौन आया, देखो ये वो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था भाई, इनिशियली यहाँ पे आके इसने बाइंड कर लिया था आपके। अगर इसको चेंज करें हम, अगर हम कलर को चेंज करके दिखाएं फिर से, तो यहाँ इसने बाइंड कर लिया था, तो यहाँ पर यह प्रोटीन बन गया था। ये ट्रांसक्रिप्शन और ये ट्रांसलेशन ऑपरेशन ने क्या किया, प्रोटीन बना लिया। ठीक है, यहाँ पर प्रोटीन बना था आपका, तो ये प्रोटीन जब आपका बन रहा था इनिशियली, ठीक है, एक सेकेंड, तो जब ये प्रोटीन बना रही एक्टिव था, लेकिन जब अभी हमने क्या बोला, जब इंड्यूसर आ गया, इनिशियल नो इंड्यूसर, अब क्या था आपका, इंड्यूसर है आपके पास, जब आपका इंड्यूसर आ गया सिस्टम में, तो चलो मैं इंड्यूसर बना लेता हूँ, एक मोलिक्यूल इंड्यूसर मोलिक्यूल मैंने बना दिया, ये वाला इंड्यूसर बना दिया, चलो मैंने, ये आपका क्या था, इंड्यूसर था, इसने ज़िंदगी में आ गया। अब ये वाला प्रोटीन था आपको जो इनिशियल एक्टिविटी, इसके पास दो बाइंडिंग साइट थी, हैविंग टू बाइंडिंग साइट, इन वन बाइंडिंग साइट फॉर ऑपरेटर एंड वन फॉर द इंड्यूसर, इसको हम आई से कहते हैं, दिस इज योर इंड्यूसर। तो इसके पास हैव टू बाइंडिंग साइट, दिस रिप्रेसर मॉलिक्यूल हैव टू बाइंडिंग साइट, वन फॉर ऑपरेटर वन फॉर इंड्यूसर, बट कंडीशन क्या है, एट ए टाइम इट ओनली बाइंड विद अदर ऑपरेटर और इट विल बाइंड अदर इंड्यूसर। अगर ऑपरेटर के साथ बाइंड है तो इंड्यूसर के साथ नहीं कर सकता, और इंड्यूसर के साथ है तो ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं करेगा, बिकॉज देखो इंड्यूसर आया, अब इंड्यूसर आएगा तो इसको ज़िंदगी में मिला है ना इंड्यूसर, तो क्या होगा नेक्स्ट स्ट्रक्चर, ये वाला आपका स्ट्रक्चर था, देखो इट वाज योर स्ट्रक्चर। नव यहाँ पर आपका इंड्यूसर आकर यहाँ बाइंड कर गया, जैसे ही इंड्यूसर ने एज इंड्यूसर गेट बाइंड, there were some changes takes place in its structure, so structural changes होंगे, अगर होंगे उन स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से क्या होगा, नाउ इट विल नॉट एबल टू लॉन्गर बाइंडिंग विद द ऑपरेटर रीजन। अभी ये प्रोटीन जैसे इंड्यूसर के साथ बाइंड होगा तो लॉन्गर अवेलेबल नहीं रहेगी इसकी बाइंडिंग साइट की ऑपरेटर के साथ बाइंड कर, अब ऑपरेटर आपका क्या रह जाएगा, यहाँ पर फ्री हो जाएगा, ऑपरेटर के साथ कोई बाइंडिंग नहीं, तो अभी क्या होगा, जीन का प्रोडक्शन आपका ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रोटीन जिनके साथ अगर इंड्यूसर बाइंड करता है तो स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं, ऐसे प्रोटीन को हम क्या कर सकते हैं, एलोस्टेरिक प्रोटीन भी कह सकते हैं। और ऐसे क्या क्या कहेंगे, तो एलोस्टेरिक प्रोटीन भी कह सकते हैं। एलोस्टेरिक प्रोटीन की अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें एलोस्टेरिक की प्रोटीन की, क्या डेफिनेशन होगी आपकी भी, राइट डाउन करो, प्रोटीन आर द प्रोटीन which change their shape on binding to certain molecule भाई वो प्रोटीन जो चेंज करेंगे, और ये जो प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी जिसमें ये अपना चेंज करे, इसको हम एलोस्टेरिक ट्रांजिशन भी कह रहे हैं, भाई अपने फॉर्म में चेंज कर ले, ट्रांजिशन ले लिया उन्होंने, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एलोस्टेरिक ट्रांजिशन भी कह देंगे। आया कि रिप्रेसर प्रोटीन के, तो फिर से देख लो, ये आपका सपोज करो इट रिप्रेसर हैविंग टू बाइंडिंग साइट, दिस इज से बाइंडिंग 1 और बाइंडिंग साइट 2, वन फॉर वी कैन से ऑपरेटर, सेकंड फॉर इंड्यूसर। सो अगर एक के साथ बाइंड करेगा, अगर इंड्यूसर यहाँ पे बाइंड कर जाता है तो इसकी बाइंडिंग में चेंज इवेंट आ जाएगा, स्ट्रक्चरल चेंज हो जाएगा। ये सपोज करो ऐसे स्ट्रक्चर बना दिए, अभी पहले इंड्यूसर नहीं था, यहाँ पर अभी इंड्यूसर बाइंड करने से स्ट्रक्चरल चेंज हो गया, तो अभी इट विल नॉट एबल टू बाइंड लॉन्गर विद द ऑपरेटर रीजन,
सो सच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी को हमने क्या बोला, एलोस्टेरिक प्रोटीन्स, और एलोस्टेरिक ट्रांजिशन भी हम इस चीज़ को बोल सकते हैं। तो ये कब किस सिस्टम के लिए था, नेगेटिव इंड्यूसिबल कंट्रोल कब होगा, जब आपका सिस्टम से हम कैटाबोलिक के लिए यूज़ करेंगे। कैटाबोलिक मतलब कोई भी सिस्टम जब हम सेल के बाहर से प्रोवाइड करते, कोई भी जिनका सेल से बाहर से लेंगे, सेल के अंदर नहीं बनना, सेल के बाहर से अगर कोई प्रोडक्ट हम ले रहे हैं तो उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं कि दिस इज़ ए नेगेटिवली इंड्यूसिबल सिस्टम। जैसे कि यहाँ पर हम बात कर रहे थे, ये नेगेटिव इंड्यूसिबल सिस्टम आपका, ऐसा ही आपका लैकोपेरोन का भी सिस्टम रहेगा, तो अभी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे उसके बारे में भी, ठीक है, इतना कर लोगे। सो अगर हम नेक्स्ट की बात करें, नेगेटिव रिप्रेसिबल ओपेरन, तो एक बार फिर से देख लेते हैं नेगेटिव रिप्रेसिबल में क्या होगा। अगेन यूज द टर्म नेगेटिव मीन्स देर आर अ रोल ऑफ, कौन से प्रोटीन का रोल है नेगेटिव में, नेगेटिव बोले तो अगेन रोल इज ए रिप्रेसर, रिप्रेसिबल सिस्टम। लास्ट वन inducible, now this is a repressible, so it mean it was initially on, now we have to off this system, we have to off this system। इनिशियली क्या था, ऑन था, अब हमें ऑफ करना है, ठीक है। रोल क्या है रिप्रेसर का, यानी कि रिप्रेसर कैसा था, इनिशियली इनएक्टिव रहा होगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्या होगा नेगेटिव रिप्रेसिबल सिस्टम। उसमें क्या था, आपका कोई भी सबस्ट्रेट का, सबस्ट्रेट एक्ट एज इंड्यूसर। अब इसमें क्या होगा, आपका जो प्रोडक्ट रहेगा वो किसका काम करेगा, एक को रिप्रेसर मॉलिक्यूल चाहिए, ठीक है, को रिप्रेसर का काम करेगा। क्या था अभी देख लेते हैं। व्हेन देयर वाज नो प्रोडक्ट, इनिशियली क्या था सिस्टम, ऑन था, हमें क्या करना है, ऑफ करना है। रोल किसका है, रिप्रेसर का, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर होनी चाहिए अपने माइंड में। तो चलो हम सेल बना लेते फिर से। ये आपके जीन हो गए, ये आपका रेगुलेटरी प्रोटीन है, ये आपका प्रमोटर हो गया रेगुलेटरी प्रोटीन का, ऑपरेटर प्रमोटर हो गया, ऑपरेटर हो गया S1 जीन हो गई, चलो, और S2 जीन हो गई, ठीक है। इनिशियली क्या था आपका, इन इनिशियल कंडीशन देखो, यहाँ पर आपका पॉलीमरेज ने बाइंड किया, रिप्रेसर प्रोटीन बना, ट्रांसक्राइबर ट्रांसलेशन। अभी इस ट्रांसलेशन के बाद ये प्रोटीन देखना जरा सा, ये आपका प्रोटीन बन गया, और नव इट वाज इनएक्टिव। अब आपका प्रोटीन कैसा था, इनएक्टिव है। फिर प्रोटीन ने क्या किया, इनिशियली ऑन था, यानी कि आपका प्रोटीन क्या था, रिप्रेसर इनएक्टिव था, हमें क्या बनाना है, इसको एक्टिव करना है, तभी तो ऑफ होगा सिस्टम, तभी तो हम इसको रिप्रेस कर पाएंगे। तो इनिशियली जैसे ही आपका रेगुलेटरी जीन ने क्या किया था, इनएक्टिव प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, तो क्या कर इनएक्टिव प्रोटीन बनाया। तो यहाँ पर क्या होगा, सपोज करो अब इनएक्टिव था ये प्रोटीन कैसा था, आपको इनएक्टिव था, तो इट विल बी नॉट एबल टू बाइंड विद दिस प्रोटीन। तो ये प्रोटीन आपका अब ये ऑपरेटर रीजन के साथ नहीं बाइंड कर पाएगा। जब ये बाइंड नहीं होगी तो ये वाले जीन होंगे, यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज इसका आएगा। भाई रेगुलेटरी जीन के बाद जो आपका स्ट्रक्चरल जीन है, यहाँ पर इसका आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर बाइंड किया, ट्रांसक्राइब करता करता चला जाएगा, और यहाँ पर आपका जीन कैसा रहेगा, ऑन था। तो इनिशियली जीन क्या रहेगा आपका, ऑन है, ठीक है। ये कंडीशन कब थी, जब देर वाज नो प्रोडक्ट, कोई भी जिसका जो को रिप्रेसर नहीं था। तो को रिप्रेसर प्रोडक्ट ही एक को रिप्रेसर की तरह एक्ट होगा इसमें। तो जब आपका जीन क्या था, इनिशियली ऑन था, और यहाँ पर आपका जीन ऑन रहेगा। तो ये, और जब सेकंड केस की बात करें, जब आपके पास ये जीन ट्रांसक्राइब करता गया तब बहुत सारा आपके पास ये प्रोडक्ट होगा इस जीन का। तो क्या होगा इसका देखो, तो केस सेकंड में क्या होने वाला आपका, केस सेकंड में आपके ये फिर से बना लो, दिस इज प्रमोटर ऑफ रेगुलेटरी जीन, प्रमोटर, ऑपरेटर, और ये आपको स्ट्रक्चरल जीन्स हो गए S1 S2। नव अगर हम बात करें, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर अब किसकी एंट्री हो चुकी, दिस इज योर प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है जो आपको क्या को रिप्रेसर की तरह एक्ट होंगे, जो इनसे बने थे, ठीक है। तो ये आप किसकी तरह एक्ट होंगे, आपके को रिप्रेसर की तरह। तो अभी क्या था आपका कि यहाँ पर इन्होंने आपका ट्रांसक्रिप्शन तो हो गया था, भाई ट्रांसक्रिप्शन तो होगा, ये इन्होंने बाइंड किया, इसने ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेट, ये आपका सपोज करो प्रोटीन बन गया था जो इनएक्टिव था। लेकिन एज इट नाउ अवेलेबल ऑफ देयर को रिप्रेसर, सो अब क्या होगा, को रिप्रेसर इसके साथ क्या करेगा, बाइंड करेगा। सो को रिप्रेसर प्रोटीन नाउ, जो प्रोडक्ट आपका को रिप्रेसर तो वो नाउ एबल टू बाइंड विद दिस सिचुएशन, दिस प्रोटीन। भाई यो इनिशियली जो आपका एक्टिव प्रोटीन इनएक्टिव था, अब इसके साथ कौन बाइंड हो गया,
को रिप्रेसर बाइंड हो गया। और अब जब को रिप्रेसर बाइंड होने से क्या करेगा, को रिप्रेसर क्या करता है, मेक दिस प्रोटीन रिप्रेसर, दिस इज योर रिप्रेसर, तो मेक इट पॉसिबल टू बाइंड विद दिस ऑपरेटर सीक्वेंस। भाई जैसे इनिशियली कंडीशन में आपका को रिप्रेसर इनएक्टिव था, जब आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं था, जीन आपके ऑन हो रहे थे, ठीक है, यहाँ पर जीन का ट्रांसक्रिप्शन ऑन था। एज देर इज लॉट ऑफ जीन्स आर ऑन, सो देर आर प्रोडक्ट इज प्रेजेंट विद इन ए सेल। सो जब आपके पास सेल के अंदर प्रोडक्ट है जो आपका कोरिप्रेसर का काम करेगा इस सिस्टम में, तो क्या होगा, जैसे ही आपका इनएक्टिव बना तो आपके पास प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा होता है। अब ये प्रोडक्ट किसके साथ बाइंड कर गया था, आपके जो इनएक्टिव कोरिप्रेसर था, सो इनएक्टिव रिप्रेसर के साथ कोरिप्रेसर बाइंड कर गया। और हमें पता है कोरिप्रेसर क्या कर देता है, एक्टिव कर देता है कोरिप्रेसर मॉलिक्यूल को। और हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट इट मेक रिप्रेसर मॉलिक्यूल बाइंडिंग, make the repressor protein to bind, make the repressor protein capable of binding with operator region। भाई यहाँ पर देखो, as we know the co-repressor help the repressor molecule, or we can say make it capable of binding with the operator sequence. So now it will be able to bind with this operator sequence. Now your repressor molecule bind with the operator sequence and now the gene transcription is gets off। क्लियर है, तो अब आपका जो जीन का ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। नाउ टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट, पॉजिटिव इंड्यूसिबल सिस्टम। इन पॉजिटिव इंड्यूसिबल कंट्रोल में क्या होगा आपका, एज वी ऑल नो पॉजिटिव मीन्स क्या मतलब पॉजिटिव का, देयर इज ए रोल ऑफ एक्टिवेटर प्रोटीन। इंड्यूसिबल मीन्स समथिंग वाज ऑफ, नाउ वी हैव टू ओन दिस सिस्टम। Activator initially was inactive, now we have to active the activator, ये कंडीशन है, ठीक है। तो कंडीशन फर्स्ट, जब आपका इंड्यूसर विदाउट इंड्यूसर, जब आपका क्या था, इंड्यूसर नहीं था, नो इंड्यूसर, क्या सिस्टम चल रहा था आपको, ये आपकी सेल हो गई, ये इट वाज योर प्रमोटर ऑफ रेगुलेटरी जीन्स, दिस इज रेगुलेटरी जीन्स के एक्टिवेटर प्रोटीन के लिए हो गया, दिस इज योर प्रमोटर ऑपरेटर S1 S2। इनिशियली यहाँ पे बाइंड किया, एक्टिवेटर प्रोटीन ने क्या किया, दिस इज एक्टिवेटर प्रोटीन था और ये कैसा था, इनिशियली आपका जीन क्या था, ऑफ था। इट मीन इट वाज इनएक्टिव, इनएक्टिव था, तो ये यहाँ पर बाइंड नहीं कर पाएगा कैप साइट पर, इट विल नॉट एबल टू बाइंड विद द कैप साइट। हमें पता है ये कहाँ पर बाइंड करता है, कैप साइट पर, तो कैप साइट पर बाइंड नहीं करेगा तो ट्रांसक्रिप्शन को ऑन नहीं कर पाएगा, इट विल नॉट एबल टू ऑन द ट्रांसक्रिप्शन, सो नाउ जीन वाज ऑफ। भी देखो जब हमें पता है, देखो इनिशियली इंड्यूशन नहीं है आपके पास, जो आपका एक्टिवेटर यहाँ से ट्रांसक्राइबर बना था वो कैसा था, इनएक्टिव था। जब ये इनएक्टिव थे बाइंड नहीं कर पाएगा कैप साइट पर, एंड व्हेन एवर इट नॉट एबल टू बाइंड विद द कैप साइट, अगर ये कैप साइट के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा तो आपका ट्रांसक्रिप्शन क्या रहेगी, ऑफ होगी, क्योंकि कैप साइट पर बाइंड करने के बाद क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन को फास्ट करेगा, ट्रांसक्रिप्शन को ऑन करवा के जाएगा। केस सेकंड, व्हेन देयर वाज ए इंड्यूसर, जब आपके सिस्टम में किसकी एंट्री होगी, इंड्यूसर आ गया, फिर से इंड्यूसर जिंदगी में आ गया तो क्या होगा, देखो भाई सेल फिर से बना लेता हूँ, दिस इज योर प्रमोटर ऑफ रेगुलेटरी जीन, दिस योर एक्टिवेटर प्रोटीन जिसको हम रेगुलेटरी प्रोटीन बोल रहे हैं, प्रमोटर है, दिस इज योर ऑपरेटर, ये S1 और S2 जीन। अब यहाँ पर आपका क्या था, एक्टिवेटर प्रोटीन बना, ये इट वाज सपोज दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिवेटर, इट वाज इनएक्टिव था, इनिशियली क्या था, इनएक्टिव था, ये आपकी कैप साइट हो गई। अभी यहाँ पर आपका इंड्यूसर आ गया, तो इंड्यूसर को चलो हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इंड्यूसर को रेड कलर से डोनेट करते हैं, ये आपका इंड्यूसर आ गया। अभी ये इंड्यूसर किसके साथ बाइंड करके देखो जरा नेक्स्ट डायग्राम में, तो ये इंड्यूसर किसके साथ बन गया, आपका एक्टिवेटर प्रोटीन के साथ। अब एक्टिवेटर प्रोटीन के साथ बाइंड हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा, और ये एक्टिव होने की वजह से क्या बाइंड, आपके कौन से कैप साइट पे बाइंड करेगा और ट्रांसक्रिप्शन को क्या कर देगा, ऑन कर देगा। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव इंड्यूसिबल कंट्रोल हो गया। इनिशियली क्या था आपका, ऑफ द सिस्टम, वी हैव टू इंड्यूस दिस सिस्टम बाय द कंट्रोलिंग द फंक्शन ऑफ ए एक्टिवेटर प्रोटीन। लास्ट केस की बात कर रहे थे, द पॉजिटिव रिप्रेसिबल सिस्टम। पॉजिटिव का नाम आते ही क्या दिमाग में आ जाता है हमें, एक्टिवेटर। रिप्रेसिबल वी हैव टू ऑफ दिस सिस्टम, ऑन से हमें ऑफ करना, यानी कि एक्टिवेटर आपका क्या था, पहले ऑन था, एक्टिव एक्टिवेटर था, हमें इनएक्टिव बनाना है इसको, कैसे, देखो इनिशियली कंडीशन बात करते हैं,
दिस योर प्रमोटर ऑफ रेगुलेटरी जीन, एक्टिवेटर प्रोटीन का जिस सीक्वेंस हो गई आपकी कैप साइट हो गई, प्रमोटर हो गया, ऑपरेटर हो गया, S1 S2 स्ट्रक्चरल जीन्स हो गया आपके। तो यहाँ पर एक्टिवेटर प्रोटीन बना, इनिशियली इट वाज एक्टिव था, एक्टिव एक्टिवेटर था, ये कहाँ पे कैप साइट पे बाइंड कर गया और ये ट्रांसक्रिप्शन ऑन करा दिया। केस वन में आपका क्या था, आपका जीन क्या रहेगा, ऑन था, ठीक है। पॉजिटिव की जो हम बात कर रहे हैं, जीन क्या था आपका, ऑन रहेगा, ये एक्टिव था जो आपके साथ बाइंड कर गया है। पॉजिटिव कंट्रोल की बात कर रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव रिप्रेसिबल की बात चल रही थी अभी। तो अगर हम केस सेकंड की बात करें, केस सेकंड में वही सारी चीज़ बना दो, इस प्रमोटर हो गया, दिस एक्टिवेटर प्रोटीन हो गया, ये आपका कैप्साइट हो गई, प्रमोटर, ऑपरेटर और S1 S2 जीन्स, क्लियर है इतना। नाउ केस सेकंड में ये अगेन आपका एक्टिवेटर प्रोटीन एक्टिव बना, ये एक्टिव था, तो सम रिप्रेसर प्रोटीन आया यहाँ पर, रिप्रेसिबल तो हमने बोला, एक रिप्रेसर आ गया, कोई भी मॉलिक्यूल आ गया जो आपको इसको इनएक्टिव कर देगा। ये आपका ये प्रोडक्ट ही बन गया, सपोज करो इसका जो ऑन था ये प्रोडक्ट ज़्यादा हो गया आपके सेल में, तो अभी ये प्रोडक्ट क्या करेगा, जो रिप्रेसर का काम करेगा, तो अभी क्या करेगा, इसके साथ जाके बाइंड करेगा सपोज करो। तो नव जो आपका एक्टिवेटर इनिशियली क्या था, एक्टिव था, ये बाइंड करने की वजह से क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया। अभी इनएक्टिव हो गया तो ये कैप साइट के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा। अब कैप साइट के साथ अगर बाइंड नहीं कर पा रहा तो ये जीन की ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगी आपकी, ऑफ हो जाएगी। देखो इनिशियली कहती ऑन थी, तो ऑन थी तो आपके पास ये प्रोडक्ट बन रहे थे, जैसे प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हुआ यहाँ पर आपका फिर से एक्टिव बना, तो ये वाला प्रोडक्ट जाके एक्टिवेटर के साथ बाइंड करके सपोज करो, और जैसे एक्टिवेटर के साथ बाइंड होने की वजह से क्या होगा, कुछ भी कारण हो सकता है, बाइंड भी कर सकता है, कोई और वेरियस वे से कर सकता है, तो हम देख लेंगे अभी। तो अगर ऐसा हो रहा है आपको इसके साथ बाइंड कर रहा है या फिर कुछ और तरीके से, तो क्या हो रहा है इसमें, जब आपका एक्टिवेटर इनिशियली एक्टिव था, अभी एक्टिवेटर क्या होगा, आपका इनएक्टिव हो गया। जब एक्टिवेटर आपका प्रोटीन एक्टिव हो गया तो कैप साइट के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा, और कैप साइट के साथ बाइंड करने का मतलब है कि आरएनए के ऊपर उसकी एफिशिएंसी को नहीं बढ़ा पा रहा, यानी कि आपकी ट्रांसक्रिप्शन को नहीं कर पा रहा, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन आप क्या हो जाएगी, के सेकंड में आपकी ट्रांसक्रिप्शन एक ऑफ हो जाएगी, ठीक है। तो अब इतना क्लियर। अभी चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ए लैक ओपेरॉन, we are going to talk about lac operon. It is a catabolic type of operon system. Lac operon is a inducible operon. Lac operon is an inducible operon. It found always off and is turned on whenever a molecule called inducer is present in the system. Inducer present in the system. So it is a inducible type of operon. It is inducible means initially gene was off, now we have to on the system, so it is a inducible type of system. Clear है? Now we make a general structure for the lac operon. It is initially off and now we have to on. So there are again two role of two activator, or we can say depressor proteins. There are two role, there is a role of two proteins, a activator or a repressor protein. So whenever जब आपका इनिशियल कंडीशन देखिए ऑफ था, हमें क्या करना है, ऑन करना है। रोल आपके अगेन देयर इज टू प्रोटीन्स। नंबर वन आपका कौन सा प्रोटीन होगा बच्चों, एक्टिवेटर। सेकंड आपका रिप्रेसर। इनिशियली जब यह आपका ऑफ था तो एक्टिवेटर एट दैट कंडीशन वाज इनएक्टिव था, और रिप्रेसर कैसा होगा, एक्टिव रहेगा। सो हमें क्या करना है, रिप्रेसर को तो हमें एक्टिव करना है, इनएक्टिव करना है एक्टिव से, और एक्टिवेटर को हमें क्या करना है, एक्टिव करना है, तभी आपका सिस्टम क्या हो पाएगा, ऑन हो पाएगा।
तो ये आपका लैक ओपेरॉन में। अगर हम लैक ओपेरॉन में जीन के बारे में बात करें, कौन कौन से जीन होते हैं सिस्टम में, देखो ये चलो मैंने आपको सेल बना दिया। बैक्टीरियल जीन रेगुलेशन की बात करें हम यहाँ पर, दिस इज योर प्रमोटर ऑफ रेगुलेटरी प्रोटीन। रेगुलेटरी प्रोटीन हो गया आपके, ये आपका एक्टिवेटर भी हो सकता है और रिप्रेसर भी हो सकते हैं। दिस इज कैप साइट, जहाँ पर आप एक्टिवेटर बाइंड करेगा। ये आपका इट इज़ योर प्रमोटर ऑपरेटर साइट, और जेड जीन, वाई जीन, ए जीन। ठीक है, हम इक्वली इन चीज़ों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। हेयर प्रमोटर हो गया, ये आपका एक्टिवेटर प्रोटीन, ये आपकी कैप साइट है। तो कैप साइट पर कौन बाइंड करता है, जो भी आपका एक्टिवेटर प्रोटीन में कैप साइट पर बाइंड करेगा। रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा, वो आपका ऑपरेटर पर बाइंड करेगा। यहाँ पर आपका आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, और ये आपके स्ट्रक्चरल जीन्स हो गए। तो इसमें जो आपके यहाँ से लेकर ये जो सीक्वेंस रहेगी ऑपरेटर तक, ऑल आर कंट्रोलर जीन सीक्वेंस, कंट्रोलर जीन, और ये इट इज़ योर स्ट्रक्चरल जीन। सो जेड हेयर कोड फॉर ए प्रोटीन मीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज। लेट मी इसको सही से लिख लेते हैं इसको एक बार। यहाँ पर जो आपको बीटा गैलेक्टोसाइडेज, एंड वाई हेयर कोड फॉर प्रोटीन परमीएज प्रोटीन, A for trans-acetylase. तो trans-acetylase have not play any role in this lac operon. Only the two protein beta galactosidase and permease play role in this operon. Permease is a channel protein, so it will going to form channels. और ये चैनल है किसके लिए, these act as a transporter for the lactose मॉलिक्यूल इसके थ्रू क्या आएगा, इनसाइड आएगा। और जैसे ही लैक्टोज आप जिंदगी की इसके अंदर आ गया सेल के अंदर, तो लैक्टोज को से क्या बनेगा, यहाँ पर बीटा गैलेक्टोसाइड क्या बना जाए लैक्टोज से, यानी कि लैक्टोज से आपका ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज बन जाएगा। सेकेंडली आपका एलो लैक्टोज भी बनेगा, एलो लैक्टोज। और ये जो आपका एलो लैक्टोज है, इट इज एक्ट एज ए इंड्यूसर फॉर लैक ओपेरॉन। जो हमने इंड्यूसर की बात की थी यहाँ पर कि ये इंड्यूसिबल सिस्टम, सो वी हैव रिक्वायर ए मॉलिक्यूल दैट इज नोन एज इंड्यूसर। तो इंड्यूसर का काम यहाँ पर कौन करेगा, आपका एलोलैक्टोज एक्ट एज ए इंड्यूसर फॉर इन द लैक ओपेरॉन। नाउ वी टॉक अबाउट नेगेटिव कंट्रोल। मतलब नेगेटिव कंट्रोल को हम क्या कह सकते हैं, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। लैक ओपेरॉन को नेगेटिव कंट्रोल है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, LONI in lactose operon is negatively inducible। मीन्स नेगेटिव का मतलब क्या, रोल ऑफ द रिप्रेसर इंड्यूसिबल, मतलब कोई सिस्टम आपका ऑफ था, वी हैव टू ओन दिस सिस्टम। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन है, यानी कि इनिशियली आपका सिस्टम क्या है, ऑफ है, हमें क्या करना है, उसको इंड्यूस करना है, ऑन करना है। तो आपका क्या चाहिए, रोल कौन से प्रोटीन के थ्रू करना है, किसको रेगुलेट करते हुए, रिप्रेसर प्रोटीन को। चलो स्ट्रक्चर बना देते हैं। जब आपकी ज़िंदगी में कौन नहीं था, लैक्टोज नहीं था। लैक्टोज नहीं होगा तो आपका एलोलैक्टोज नहीं बनेगा, यानी कि आपके पास इंड्यूसर नहीं होगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं, व्हेन नो इंड्यूसर इन द सिस्टम, जब आपके सिस्टम में इंड्यूसर नहीं था तो क्या था, ये आपका प्रमोटर रेगुलेटरी का, ये आपका रेगुलेटरी प्रोटीन हो गया, ये कैप्साइट हो गई, ये आपका प्रमोटर हो गया, ऑपरेटर रीजन, और जेड हो गया, वाई जीन हो गया, ए जीन। तो इनिशियली क्या होगा, ये इंड्यूसिबल है तो ऑफ कंडीशन में मिलेगा। भाई आपके पास इंड्यूसर तो था नहीं, रिप्रेसर प्रोटीन बना, और ये जाकर कहाँ बाइंड कर रहा था, एक्टिव था, ये एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन था। तो ये बाइंड कहाँ पे कर रहा था, ऑपरेटर रीजन पर। कौन बाइंड कर रहा था, आपका ये रिप्रेसर प्रोटीन था। और इसकी वजह से, बाइंडिंग की वजह से, यहाँ पे ये जीन कैसा रह रहा था, आपका जीन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पा रही थी, क्योंकि अभी प्रमोटर के आगे पास रास्ता ही नहीं, आगे ट्रांसक्राइब करे सीक्वेंस को, क्योंकि यहाँ पर कौन बाइंड हो रहा था, आपका रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर रीजन पर। तो इनिशियली जब आपका लैक्टोज नहीं था, सेल के पास कोई इंड्यूसर नहीं है, तो जीन आपका ऑफ था। केस सेकंड, व्हेन लैक्टोज प्रेजेंस था आपके सेल सिस्टम में, मीन्स आपकी ज़िंदगी में कौन आ गया, लैक्टोज नाम का एक दवाई मिल गई आपको। तो लैक्टोज आया, लैक्टोज से क्या होगा, एलोलैक्टोज बना देगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, यानी कि एलोलैक्टोज आपको मिल गया।
जब आपके पास एलो लैक्टोज है, इसका मतलब आपके पास इंड्यूसर है, तो क्या हो जाएगा, देखो व्हेन इंड्यूसर इज प्रेजेंट, यानी कि आपका इंड्यूसर क्या आपके पास प्रेजेंट है। ये ओके सेम चीज़ें हैं आपकी। तो ये आपका क्या हो गया, प्रमोटर ऑफ रेगुलेटरी प्रोटीन हो गया, कैप्साइट मान लो, प्रमोटर ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, ऑपरेटर और जेड वाई और ए जी। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपका प्रमोटर है आपके पास, क्या आपका पास प्रमोटर अवेलेबल है, सॉरी यहाँ पर आपके प्रमोटर बाइंड किया, तो यहाँ पर आपका जो आर से कौन सा रेगुलेटरी रिप्रेसर प्रोटीन बना, कैसा था रिप्रेसर प्रोटीन, यहाँ पर एक्टिव बना, एक्टिव रिप्रेसर है, सपोज करो ये आपका एक्टिव रिप्रेसर है। लेकिन अभी आपके पास एक कौन आ गया आपकी ज़िंदगी में अभी यहाँ पर आपका इंड्यूसर नाम की दवाई है, यानी कि आपका इंड्यूसर है सपोज करो, तो इंड्यूसर मोलिक्यूल है जिसको हम एलोलैक्टोज ये प्रेजेंट है। अब ये जब दोनों के बाइंड कर जाएगा, हमें पता है इसके पास दो बाइंडिंग साइट है, एक एलोलैक्टोज बाइंडिंग साइट और एक आपके ऑपरेटर। यहाँ पर सपोज करो आपको यहाँ कौन बाइंड कर गया है, ये आपका एलोलैक्टोज के साथ बाइंड कर दिया, तो अभी ये क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया, यानी कि इसने क्या किया अपने स्ट्रक्चर में चेंज कर लिया और अभी ये लॉन्गर बाइंडिंग नहीं कर पाएगा किसके साथ, ऑपरेटर जी। तो अभी ऑपरेटर फ्री है, जिस दिन यहाँ पर आपका पॉलीमरेज आया बाइंड के और यहाँ पर आपका जीन को क्या कर देगा, ऑन कर देगा। भी आपके पास जो रिप्रेसर के पास दो बाइंडिंग साइट थी, सपोज ये आपको क्या था, एक रिप्रेसर मॉलिक्यूल है, दो बाइंडिंग साइट है, इंड्यूसर के लिए है, ये आपकी ऑपरेटर के साथ है। अगर यहाँ पर इंड्यूसर बाइंड कर गया तो इसने अपना स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, देखो ऐसा कर दिया। अब ये बाइंडिंग थी, इसकी कन्फर्मेशन चेंज आ गया, तो ये ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं कर पा रहा, और ऐसे प्रोटीन को हम एलोस्टेरिक प्रोटीन करके जो ट्रांजिशन करके जा रहे हैं, चेंज कर रहे फॉर्म को, उसको हम एलोस्टेरिक ट्रांजिशन भी कहते हैं। अगर हम अदर इंड्यूसर की बात करें लैकोपेरोन के लिए, तो आपका जो आईपीटीजी है, ये भी क्या आपका एक एक्ट एज ए इंड्यूसर, ये आपका स्ट्रक्चरल एनालॉग है, किसका स्ट्रक्चरल एनालॉग, आपके जो सिस्टम में आपका जो एलोलैक्टोज है उसका स्ट्रक्चरल एनालॉग, और ये भी किसका काम करेगा, एक्ट एज ए इंड्यूसर इन लैकोपेरोन। क्लियर है इतना। अभी नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम बात करें पॉजिटिव कंट्रोल की, अगर लैकोपेरोन के अगर पॉजिटिव कंट्रोल की बात करते हैं, तो क्या होता है, पॉजिटिव कंट्रोल होगा जो आपका एक डायमेरिक प्रोटीन है जिसको हम कैप प्रोटीन कह रहे हैं, कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन, ये आपका पॉजिटिव कंट्रोल करके जा रहा है, मतलब क्या बोले तो आपका एक्टिवेटर प्रोटीन, और इसका जो एक्टिवेटर प्रोटीन कौन होगा, आपका कैप प्रोटीन है, जिसका हम रोल कौन करेंगे, है तो ये इंड्यूसिबल सिस्टम, इनिशियली आपको कहते हैं सपोज करो ऑफ था, हमें ऑन ही करना है, रोल अब किसका करना है, कैप प्रोटीन का रोल करना है, कैप क्या आपका एक्टिवेटर, कैप क्या था ऑफ था, हमें क्या करना है, ऑन करना है। ठीक है, तो जब आपके सिस्टम में कौन नहीं था, सपोज करो कैप, लेकिन कैप की एक कंडीशन होती है, कैप एक्टिव कब होगा, जब कैप किसके, देखो इनिशियली जब आपके पास कौन नहीं था सिस्टम में, इसका इंड्यूसर मान लो, कैप का जो इंड्यूसर कैप के साथ बाइंड करेगा वो नहीं था, जैसे कि भी आपका ये आपका डीएनए है, ये हमने क्या बताई थी, कैप साइट थी, प्रमोटर था, ये आपका क्या था, ऑपरेटर था, जेड वाई और ए था जी। यहाँ पर मैंने बोला एक्टिवेटर प्रोटीन रेगुलेटरी प्रोटीन की बात करें, तो यहाँ पर प्रोमोटर्स का रेगुलेटरी। अब इसने क्या किया, आपका कैप प्रोटीन तो बना दिया, ट्रांसक्राइब होकर इसने क्या कैप प्रोटीन बना दिया। अभी ये कैप प्रोटीन था इनिशियली, यहाँ बाइंड नहीं कर सकते इस कैप साइट पर, अकेला बाइंड नहीं कर सकता डीएनए पर, ये जब तक बाइंड नहीं करेगा ट्रांसक्रिप्शन को ऑफ ही रखेगा। तो हमें क्या करना है, इसको यहाँ बाइंड करवाना है, इसके लिए इसके पास ये बोल के जा रहा है कैप प्रोटीन, अगर मैं यहाँ बाइंड करूँगा तो मेरा एक कॉम्प्लेक्स बनाओ, ये कह रहा है मेरा एक कॉम्प्लेक्स बनाओ, और उस प्रोटीन किसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, साइक्लिक एएमपी के साथ कॉम्प्लेक्स, साइक्लिक एएमपी के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा आपका। जिस दिन कैप और साइक्लिक एएमपी मिल जाएंगे तो ये हमें बाइंड कर जाएगा डीएनए के साथ। अकेला कैप कहता है मैं अकेला तो बाइंड नहीं करूंगा, पहले तो मुझे कोई सेफ्टी दो तभी मैं बाइंड करूंगा डीएनए के साथ जाके। तो अभी क्या होगा, जैसे ही आपका कैप और साइक्लिक एएमपी बाइंड होंगे, अब ये बाइंडिंग होने से कॉम्प्लेक्स बना, और ये कॉम्प्लेक्स जाके कहाँ बाइंड करा, आपका यहाँ पे बाइंड कर गया। कौन सा कॉम्प्लेक्स था, ये कैप प्रोटीन का साइक्लिक एएमपी के साथ कॉम्प्लेक्स था, बाइंड कर गया। और इसको क्या करना है, जैसे ही कैप कैम्प कॉम्प्लेक्स बाइंड करेगा, ये क्या करेगा, इट विल इन्हांस करेगा, इसको इन्हांस कर रहा है भी, जो आपकी पोलिमरेज है, आपकी आरएनए पोलिमरेज यहाँ जो बाइंड करेगा, उस आरएनए पोलिमरेज की एफिशिएंसी को क्या करेगा, इंक्रीज करे, यानी कि जीन की ट्रांसक्रिप्शन को ऑन करवा के जाएगा। तो ये आपके साथ तभी बाइंड करेगा जब आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा साइक्लिक एएमपी का, कैप के साथ कॉम्प्लेक्स होगा। अभी साइक्लिक एएमपी को कहाँ से बन रहा है, आपका एटीपी रहेगी सेल में, एटीपी से कौन, जैसे आपका एडिनाइल साइक्लेज जाएगा साइक्लिक एएमपी बन जाएगा। लेकिन साइक्लिक एएमपी क्या कह के जा रहा है कि मैं इनवर्स, देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप होगी, देयर इज ए रिलेशनशिप विद ग्लूकोज,
देखो व्हेनेवर, जैसे ही आपके ग्लूकोज के साथ क्या रिलेशनशिप आपके साइक्लिक एमपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद साइक्लिक एमपी। क्या कह रहा है, जैसे ही ग्लूकोज की लेवल बढ़ेगी साइक्लिक एमपी, ग्लूकोज इंक्रीज होगी, साइक्लिक एमपी डिक्रीज हो जाएगी। क्या था इसका मतलब, देखो ये आपका ग्लूकोज है, इसको हमने इंक्रीज कर दिया तो यहाँ पर साइक्लिक एमपी गेट्स डिक्रीजेज, और जैसे ही हमने ग्लूकोज को डिक्रीज किया तो साइक्लिक एमपी क्या होगी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है इतना। अब देखो केस फर्स्ट की बात करते हैं। अगर हम केस फर्स्ट की बात करें कि आपके पास क्या है, सेल में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ने क्या कर दी, बहुत ज़्यादा कर देंगे। तो क्या था रिलेशनशिप, ग्लूकोज के आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके साथ था, ग्लूकोज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विद साइक्लिक एमपी। ये रिलेशन था, तो ग्लूकोज ज़्यादा रहेगा तो साइक्लिक एमपी यहाँ पर क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। अब ये साइक्लिक एमपी की कंसंट्रेशन जब आपके पास कम है तो जो कैप और साइक्लिक एमपी कॉम्प्लेक्स ज़्यादा होगा या कम मिलेगा आपको देखने को, तो ये भी आपको क्या होगा, कॉम्प्लेक्स भी क्या होगा, लेस मिलेगा देखने को। और ये कॉम्प्लेक्स कम होगा तो जो बाइंडिंग होगी, बाइंडिंग विद कैप साइट ऑफ डीएनए, वो भी लेस होगी, क्योंकि ये जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बाइंड करेगा तो लेस होगी। अगर ये बाइंडिंग नहीं हो पा रही तो आरएनए ट्रांसक्रिप्शन की, आरएनए पॉलीमरेज की एफिशिएंसी को इंक्रीज नहीं कर पाएंगे, नहीं होगी तो ट्रांसक्रिप्शन की लेवल आपको क्या होगी, लेस ट्रांसक्रिप्शन देखने को, लो लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अगर हम केस सेकंड की बात करें, वी टॉक अबाउट द केस सेकंड व्हेन द ग्लूकोज लेवल इज लो, आपका ग्लूकोज क्या आपके पास लो है तो साइक्लिक एमपी क्या हो जाएगा, एएमपी आपका सेल के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अभी जो इससे क्या होगा, आपका जो कॉम्प्लेक्स होगा कैप साइक्लिक एमपी कॉम्प्लेक्स, एएमपी कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। अभी इसकी वजह से क्या होगा, बाइंडिंग इंक्रीज हो जाएगी डीएनए के साथ, कैप साइट बाइंडिंग एट कैप साइट इंक्रीज होगी। अभी कैप साइट में अगर बाइंडिंग ज़्यादा होगी तो आरएनए पॉलीमरेज की एफिशिएंसी भी क्या होगी, पॉलीमरेज एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। अगर आरएनए पॉलीमरेज की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी तो आपके जो ट्रांसक्रिप्शन भी क्या होगी, हाई होगी। इतना क्लियर है, कर लोगे सभी। तो बेसिकली जो आपका कैप क्या करता है, कैप साइट में जो प्रोटीन बाइंड करने के बाद क्या बेनिफिट करेगा, वो क्या करके जा रहा है, एफिशिएंसी को बाइंडिंग में इंक्रीज कर रहा है कि इट विल गोइंग टू इंक्रीज दैट। देखो ये जो आपकी साइट है जो हमने यहाँ पे बनाई थी, ये प्रमोटर की जो अपस्ट्रीम जो साइट यहाँ पे मिल रही कैप साइट है, यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स बाइंड करता है कैप साइक्लिक एमपी का, तो ये बाइंड करने से यहाँ पे जो पॉलीमरेज जाएगा उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा के जाएगा और आपके ट्रांसक्रिप्शन को इंक्रीज कर देगा। यहाँ पर आपको लेस मिल रहा है क्योंकि कॉम्प्लेक्स लेस बन रहा है। ठीक है, तो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है आपका जो कैप की जो एक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड रहेगी, डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द साइक्लिक एमपी लेवल इन द सेल। सो नाउ टॉक अबाउट द सेकेंड थिंग दैट इज ए कैटाबोलिक। देखो डाईऑक्सी ग्रोथ की बात कर लेते एक बार। तो डाईऑक्सी ग्रोथ इज क्या होगा आपका, वेन एवर जब डाई मीन्स देर इज डबल, ऑक्सिक मीन ग्रोथ, देर इज डाईऑक्सिक का मतलब, डाईऑक्सिक का मतलब आपको क्या देखने को मिलेगा, डबल ग्रोथ देखने को मिलेगी सेल के अंदर। क्या देखने को मिलेगी, डाईऑक्सिक का मतलब आपको डबल ग्रोथ देखने को ऑब्जर्व होगी विद इन ए सेल, आपको डबल ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब देर विल बी ए शॉर्ट फेज, क्या होता है यहाँ पर, देर विल बी ए शॉर्ट फेज, यहाँ पर आपको एक शॉर्ट फेज दिख रहा है, लैग फेज का है, शॉर्ट लैग फेज होगा। देर विल बी ए शॉर्ट लैग फेज बिटवीन टू ग्रोथ फेज, आपके दो ग्रोथ फेज है, एक तो ग्रोथ फेज आपका ये हो गया, एक ही हो गया, इन दोनों के बीच में आपको शॉर्ट लैग फेज आएगा डायगोनल ग्रोथ में। तो ये ऐसा क्यों हुआ, आपका लैग फेज क्यों आया, तो लैग फेज इसलिए आया, देखो शॉर्ट लैग फेज इन डायगोनल ग्रोथ इज प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट करे, ड्यूरिंग विच द बैक्टीरिया सिंथेसाइज द एंजाइम नीड फॉर द लैक्टोज। भाई इस लैग फेज के दौरान आपका जो बैक्टीरिया कुछ एंजाइम सिंथेसाइज कर रहा है जो आपको लैक्टोज को अब मेटाबोलाइज कर रही है। इसको एक्सप्लेन करने के पहले हम एक बार कैटाबोलिक रिप्रेशन देख लेते हैं। कैटाबोलिक रिप्रेशन और ग्लूकोज इफेक्ट, क्या बोल के जा रहा है ग्लूकोज इफेक्ट, वेन एवर सपोज दिस इज योर सिस्टम और यहाँ पर आपको कोई बैक्टीरिया है, हमने इसके मीडियम में ग्लूकोज प्रोवाइड कर दिया, वेन ए बैक्टीरिया इज प्रोवाइडेड मीडियम ग्लूकोज एंड सपोज करो लैक्टोज और एनी अदर शुगर, सो बैक्टीरिया इनिशियली मेटाबोलाइज द ग्लूकोज, तो ये प्रीफर करेगा मेटाबोलाइज करना ग्लूकोज को
विद रेस्पेक्ट टू अदर शुगर, भी जो दूसरी शुगर आपके मीडियम में प्रेजेंट है, अवेलेबल एज एनर्जी रिसोर्स अगर, तो उनके रेस्पेक्ट में ग्लूकोज को पहले मेटाबोलाइज करेगा। देखो क्या है, जब बहुत ग्लूकोज और लैक्टोज प्रेजेंट मीडियम में, तो द बैक्टीरिया मेटाबोलाइज द ग्लूकोज फर्स्ट एंड रिप्रेस द यूज ऑफ लैक्टोज। व्हेन glucose and lactose or any other sugar present in the medium, so bacteria metabolize the glucose first and repress the use of lactose or other sugar, repress कर देगा use of other sugar, this is known as a glucose effect। इसी को हम क्या बोलेंगे, ग्लूकोज इफेक्ट। ऐसा क्यों हो रहा है, सपोज करो भाई लैक्टोज से भी तो उसको ग्लूकोज ही बनानी है, जब उसके पास इनिशियली ग्लूकोज दे रहे हैं हम, तो वो क्यों इतनी मेहनत करे, क्यों अपने सेल की एनर्जी को वेस्ट करेगा कि वो ग्लूकोज को पहले यूज करे, पहले लैक्टोज को यूज करे। भाई लैक्टोज से भी हमें क्या बनाना है, लैक्टोज से भी बैक्टीरिया इकोलाई क्या बनाया जाएगा, भाई आपका लैक्टोज से क्या बना रहा था, ग्लूकोज और लैक्टोज। जब हमने उसको ग्लूकोज प्रोवाइड करा दिया तो ग्लूकोज को ही प्रीफर करेगा ना, क्यों एलोलैक्टोज के पास जाएगा, जब उसको पता है एलोलैक्टोज को यूज करने में उसको एंजाइम चाहिए, और जबकि ग्लूकोज तो उसको डायरेक्टली यूज मिल रही है, तो अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करेगा, इसलिए उसने ग्लूकोज को पहले प्रीफर किया। तो जब सिस्टम में आपको ग्लूकोज और अदर शुगर प्रोवाइड करेंगे तो बैक्टीरिया ग्लूकोज को प्रीफर फर्स्ट करेगा एज कम्पेयर टू अदर शुगर, और हम कह सकते हैं कि ही सप्रेस द यूज ऑफ अदर शुगर, और इसी सिस्टम को जो सप्रेस करे इसको हम ग्लूकोज इफेक्ट कह के जा रहे हैं। और इसकी वजह से आपको सिस्टम में कैटाबोलिक रिप्रेस या ग्लूकोज इफेक्ट की वजह से आपको डाइऑक्सी ग्रोथ पैटर्न देखने को मिलता है। डाइऑक्सी यहाँ पर आपका शॉर्ट लैग फेज आ जाएगा, दो दो ग्रोथ फेज के बीच में। और इस लैग फेज क्यों आया, बिकॉज दिस टाइम ड्यूरेशन के दौरान बैक्टीरिया ने क्या किया, एंजाइम सिंथेसाइज किए हैं। कौन से एंजाइम, जो लैक्टोज को अब मेटाबोलाइज करने के लिए बैक्टीरिया को चाहिए, वो एंजाइम्स ने इस लैग फेज में सिंथेसाइज कर लिए। नाउ टॉक अबाउट सम केसेस व्हेनेवर द लैक्टोज प्रेजेंट एंड ग्लूकोज एब्सेंट। देखो लैक्टोज आपके पास क्या था, मीडियम में प्रेजेंट है, ठीक है, लैक्टोज प्रेजेंट है मीन्स आपके पास क्या है, सिस्टम में एलोलैक्टोज बन जाएगा, यानी कि पास आपके पास क्या इंड्यूसर है, ठीक है, इंड्यूसर होगा तो जीन क्या होता है आपका, ऑन होगा। सेकेंडली ग्लूकोज एब्सेंट है, ग्लूकोज नहीं है, मतलब आपके पास साइक्लिक एएमपी ज़्यादा है, साइक्लिक एएमपी ज़्यादा है मतलब कैप और कैम कॉम्प्लेक्स ज़्यादा है, यानी बाइंडिंग ज़्यादा है। बाइंडिंग से क्या समझ में है, आपका जो ट्रांसक्रिप्शन ज़्यादा होगा, तो कुल मिला के आपका ओवरऑल जो हाई रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन देखने को मिलेगा, हाई लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कह सकते हैं, या मैक्सिमम भी कह दो इस कंडीशन को, ठीक है। सेकंड देख लो, जब आपके सिस्टम में लैक्टोज क्या था, एब्सेंट था, इनकी लैक्टोज क्या है, नहीं है, तो यहाँ पर एलोलैक्टोज बनेगा, नहीं बनेगा, इंड्यूसर नहीं है। जब इंड्यूसर नहीं है तो जब वो सिस्टम देख लो, यहाँ पर आपका जब प्रोटीन बना था, ये ऑपरेटर है, ये रिप्रेसर प्रोटीन बना, तो डायरेक्ट बाइंड रहेगा, तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन तो इसने ब्लॉक कर दिया। सेकेंडली ग्लूकोज भी प्रेजेंट है, तो ग्लूकोज प्रेजेंट है तो मतलब क्या हो गया, साइक्लिक एएमपी की लेवल कम हो गई है, ग्लूकोज का मतलब साइक्लिक एएमपी कम है, level is decreased, so cap or cyclic AMP complex also get decreases, अब binding decreases, transcription rate decreases, so we can say there is low level of transcription, low level of transcription observed in this case. In the third case, whenever the lactose is present and glucose is present, लैक्टोज भी प्रेजेंट है, मीन्स लैक्टोज है आपके पास, एलोलैक्टोज बन जाएगी। एलोलैक्टोज आपका इंड्यूसर है, इंड्यूसर है मतलब आपका जो यहाँ से रिप्रेसर प्रोटीन बना था, ये आपको ऑपरेटर सीक्वेंस होगी, ये जो रिप्रेसर प्रोटीन बना था इसके साथ जो बाइंड करेगा कौन, एलोलैक्टोज, और इसको इनएक्टिव कर देगा, ये आपका जीन को ऑन करवा देगा। सेकेंडली जब ग्लूकोज प्रेजेंट है तो साइक्लिक एएमपी क्या था आपका, साइक्लिक एएमपी की लेवल क्या थी, कम हो जाएगी। जब ग्लूकोज है तो जो आपका साइक्लिक एएमपी है वो कम होगा, उसकी लेवल डिक्रीज होगी, तो कॉम्प्लेक्स कैप और साइक्लिक एएमपी कॉम्प्लेक्स कम होगा, कॉम्प्लेक्स कम होगा तो बाइंडिंग कम होगी, ट्रांसक्रिप्शन होगी। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो आपको लो लेवल ही देखने को मिलेगी, लो लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन देखने को मिलेगी, ठीक है। थर्ड केस, अब यहाँ पे कुछ और केस गिवन है, वेन एवर द ग्लूकोज कंसेंट्रेशन इज लो, मीन्स ग्लूकोज लो है, ग्लूकोज का क्या रिलेशनशिप था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी साइक्लिक एएमपी का, तो ग्लूकोज का में तो साइक्लिक एएमपी ज़्यादा है, यानी कि साइक्लिक एएमपी ज़्यादा है कॉम्प्लेक्स, तो साइक्लिक एएमपी और कैप कॉम्प्लेक्स बनेंगे, बाइंडिंग बनेगा, ट्रांसफर हाई कर देगा। लेकिन लैक्टोज भी लो है, यानी कि लैक्टोज लो है, यानी कि आपके पास एलोलैक्टोज कम होगा, एलोलैक्टोज कम होने की वजह से क्या होगा,
इंड्यूसर कम है तो आपका जीन ऑफ भी मिलेगा, तो यानी कि ओवरऑल आपको लो लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन देखने को मिलेगी। सेकंड में आपका ग्लूकोज ज़्यादा कर दिया, यानी कि आपका वो साइक्लिक एमपी कम हो जाएगा, तो यहाँ से एक तो आपके लेवल को कम कर दिया, सेकंड लैक्टोज भी कम है तो यहाँ से भी आपकी कम है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, मिनिमम रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन देखने को मिलेगी, आपको ऑब्जर्व होगी। हाई आपका क्या है, ग्लूकोज है, हाई लैक्टोज है, तो हाई यहाँ से आपका देखो हाई है, ये तो आपका ऑन हो जाएगा जी यहाँ से तो लैक्टोज से तो, लेकिन जो आपका ग्लूकोज हाई है इसका मतलब साइक्लिक एमपी लो हो गया, तो यहाँ पर आपका जो कैप प्रोटीन बाइंड नहीं कर पाएगा और यहाँ पर आपको फाइनली लो लेवल मिलेगी देखने को। लेकिन अगर ग्लूकोज लेवल कम है तो साइक्लिक एमपी ज़्यादा होगा, तो ये भी ऑन करेगा जीन को, और ये तो हाई है ही आपका लैक्टोज, तो ये भी हाई हो जाए, तो कुल मिला के हाई। तो इन 4 केस की बात करें तो सबसे मैक्सिमम आपको 4th केस में मिलेगी, मैक्सिमम लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इस 4th केस में, और मिनिमम लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन आपको सेकंड केस में देखने को मिल रही है। So now talk about some mutational studies related to the